Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग. दैट इज डिफरेंस हमें बताना है बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोजेनेसिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेट्स, recurrent selection for GCA and recurrent flower selection for SCA. GCA is general combining ability, general combining ability, and SCA is specific combining ability. Specific combining ability. So we have to discuss about recurrent selection, differentiate between recurrent selection for general combining ability and recurrent selection for specific combining ability. I have also taught this thing in class in detail. मैंने क्लास में भी इसको काफी अच्छे से बताया हुआ है, तो you can also refer that. ठीक है, if you are not understanding the basics of recurrent selection, you can refer to my static videos in the playlist of agriculture optional paper 1 and agriculture optional paper 2. Then we have avoidance, then we have non-preference. अवॉइडेंस एंड नॉन प्रेफरेंस के बीच डिफरेंस बताना है, पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिबिलिटी के बीच डिफरेंस बताना है. तो दीज आर द 5 डिफरेंसेस वी हैव टू टॉक अबाउट. और ये क्वेश्चन आई थी 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर ऑफ IFOS. और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी पिक किया बताने के लिए बिकॉज हियर यू विल अंडरस्टैंड अबाउट 10 सर्टेन थिंग्स. 10 टर्म्स के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक क्या होता है, सो दैट कि अगर इनमें से कोई भी पूछा जा सके तो यू विल एबल टू राइट द आंसर्स. और जनरली ये सब पूछे जाते हैं. जैसे आप GC और SC और रिकरेंट सिलेक्शन को देख ले तो ये काफी पहले पूछा जा चुका है. इट विल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एपोमिक्सिस पार्थेनोजेनेसिस पे भी डिफरेंसेस पहले पूछे गए हैं. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए. सो द फर्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोजेनेसिस. तो व्हाट इज एपोमिक्सिस? Apomixis is asexual reproduction in plants, in particular agamospermy. जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस. और पार्थेनोजेनेसिस इज नथिंग, इट इज जस्ट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस. It is a type of apomixis. It is reproduction from ovum without fertilization. That is ovum से reproduction होना without fertilization. Especially as a normal process, it generally can be seen in invertebrates and lower plants. Okay, or apomixis is generally seen in plants. Apomixis produces genetically identical clones. Okay, or parthenogenesis develops organism from egg cells. Okay, you have to also keep this mind कि identical clone बनाता है और ये organism को egg cell से develop करता है. occurs mainly in plants, occurs both in plants and invertebrates. lower plants में और invertebrates में generally देखने को मिलता है. method of asexual reproduction and parthenogenesis is a type of apomixis only. जैसे मैंने ऊपर बताया आपको parthenogenesis क्या है, apomixis का एक type है. तो I hope it is visible. You can note down this and so that you can revise it later. और ये हो गया एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस का डिफरेंस. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वालिटेटिव ट्रेट एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट. तो देखो क्वालिटेटिव ट्रेट क्या होता है? कैरेक्टर ऑफ ए काइंड, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी. क्वालिटी मतलब काइंड, किसी एक चीज का क्या कैरेक्टर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. इट डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर और डिग्री, दैट इज क्वांटिटेटिव. इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, that is how much number, कितनी डिग्री है, कितना नंबर में प्रेजेंट है. दैट इज कैरेक्टर ऑफ काइंड एंड कैरेक्टर ऑफ डिग्री. डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन डिस्टिंक्ट, इसमें इट शोज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिस्टिंक्ट फेनोटाइप क्लासेस, while as quantitative traits show continuous variation and phenotypic measurement from a spectrum. It is affected from single gene effect. Here is polygenic control, that is more than one gene. Say several genes. So in quantitative trait we have control from several genes, and qualitative trait we have control from single gene. Qualitative traits are more concerned with individual mating and their progeny, whereas quantitative traits are concerned with population. ठीक है, क्वालिटेटिव ट्रेट्स किस पे कंसर्न है? इंडिविजुअल पे, whereas quantitative traits are concerned with population. consisting of all possible kinds of mating. Okay, यहाँ पे individual mating है या population की mating. Analyzed by making counts and ratios.
यहाँ पे काउंट्स और रेशियोस एनालाइज किया जाता है, यहाँ पे स्टैटिकल एनालिसिस हो जाती है बिकॉज पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व, सो स्टैटिक्स इज इन्वॉल्व. So I hope you are able to understand qualitative traits and quantitative traits. Please note down it so that you can revise it later. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Next, going for recurrent selection for general combining ability and recurrent selection for specific combining ability. GCA is general combining ability. SCA is specific combining ability. Application, both are used to improve polygenic traits. Okay. Basis of selection, test cross performance, इसमें भी basis of selection test cross performance यहाँ तक similar है, but the tester used in GCA is heterozygous, where in SCA it is used homozygous. GCA में heterozygous tester use होता है और SCA में homozygous tester use होता है. Effectiveness, it is GCA is more effective with incomplete dominance, whereas SCA is more effective with complete and over dominance. GCA is used when additive gene action is important. ठीक है, it is used when non-additive gene action is important. So here additive gene action, here non-additive gene action. Remember it. It improves GCA, that is general combining ability of a character, and it improves SCA, that is specific combining ability of a character. तो इसको मैंने अपने कोर्सेज में, दैट इज एग्रीकल्चर ऑप्शन पेपर 2 के आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है. अगर आपने वहां देखा हुआ होगा तो इट विल बी वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यू. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. नोट डाउन सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉन प्रेफरेंस एंड अवॉइडेंस. आई होप इट इज विजिबल टू यू, और नहीं भी विजिबल है तो आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो नॉन प्रेफरेंस का होता है नॉन एक्सेप्टेंस, दैट इज प्रीफर नहीं करेंगे, प्रीफरेंस प्रीफर नहीं करेंगे. यहाँ पे जो भी हमारे इंसेक्ट पेस्ट है, दैट विल नॉट प्रीफर यू. व्हाई नॉट प्रीफर ए प्लांट? व्हाई? बिकॉज द प्लांट बिकम्स हियर अनअट्रैक्टिव. When this becomes unattractive, generally the pests don't colonize here. नॉन प्रेफरेंस में क्या है कि जो भी प्लांट है हमारे को अनअट्रैक्टिव बन जाता है, वो पेस्ट के लिए सुटेबल कंडीशंस नहीं रखता है, और उससे क्या हो रहा है, पेस्ट उस पर कॉलोनाइज नहीं करते हैं, सो इससे वो बच जाते हैं प्लांट से. दैट इज नॉन प्रीफर्ड बाय पेस्ट. यहाँ से नॉन प्रेफरेंस है. अवॉइडेंस में क्या होता है कि अवॉइड, टू अवॉइड पेस्ट. हाउ टू अवॉइड पेस्ट? फॉर एग्जाम्पल, सिंपल अवॉइडेंस इज अर्ली मैच्योरिंग. दैट इज मैच्योरिटी तब हो जाएगी जब पेस्ट की पॉपुलेशन अधिक नहीं होगी. दैट इज मान के चलो कॉटन वेराइटी, देयर इज अ कॉटन वेराइटी विच शोज अर्ली मैच्योरिटी. तो इससे क्या होगा कि जब पेस्ट जैसे पिंक बॉलवर्म है, तो व्हेन पिंक बॉलवर्म पॉपुलेशन विल बी ऑन पीक, दैट टाइम द कॉटन विल हैव ऑलरेडी मैच्योर्ड, तो इट विल हैव शो नो इफेक्ट. तो अवॉइडेंस, दैट इज टू अवॉइड पेस्ट. कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो डिले मैच्योरिटी टू अर्ली मैच्योरिटी. ठीक है, अर्ली लाइन्स और हम के जैसे अर्ली लाइन्स यू वी यूज टू एस्केप फ्लाई सूट अटैक, क्योंकि पहले मैच्योर हो जाएगा. जब तक इंसेक्ट पेस्ट वहां पे स्टेब्लिश करेगा उससे पहले हमारा क्रॉप मैच्योर हो जाएगा. दैट इज अवॉइडेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रेफरेंस एंड अवॉइडेंस. नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी. तो व्हाट इज पेनिट्रेंस? Penetrance is the percentage of individuals with a given genotype which who exhibit the associated phenotype with that genotype. इसमें क्या इंडिविजुअल पे हम लोग देख रहे हैं. इसमें it is the intensity of a phenotype in an individual. इसमें क्या हो रहा है? Sorry, it is percentage of individuals, that is population. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? We are showing more than one individuals. उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसमें जेनोटाइप जो एग्जिबिट कर रहे हैं वो फेनोटाइप से किस तरह से एसोसिएटेड है. इसमें भी हम लोग फेनोटाइप ही देख रहे हैं, बट इसमें एक इंडिविजुअल को देख रहे हैं. दैट इज पेनिट्रेंस इज मेजरमेंट टेकन इन ए पॉपुलेशन, और एक्सप्रेसिबिलिटी इज ए मेजरमेंट टेकन इन ए इंडिविजुअल. एक्सप्रेसिबिलिटी, दैट इज हाउ इंडिविजुअल एक्सप्रेस. पेनिट्रेंस, कोई एक फेनोटाइप एक पॉपुलेशन में किस तरह से पेनिट्रेट कर पाए. आप यहाँ से वर्ड से समझ पाते हो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेंस में पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगा तो इट विल ऑलवेज बी ए स्टैटिकल वेरिएबिलिटी. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको कि क्योंकि क्वालिटेटिव ट्रेट्स में क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो स्टैटिक्स आ जाती है. सो सच लाइक दैट पेनिट्रेंस में भी स्टैटिक वेरिएबिलिटी हो जाती है, और यहाँ पे एक्सप्रेसिविटी में क्या इंडिविजुअल वैरायटी है. सो आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस. प्लीज नोट इट डाउन सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर. आई होप आपको ये सारी चीज अच्छे समझ में आ गई, पांचों डिफरेंस.
प्लीज मेक नोट्स, जो भी मैं बता रहा हूँ इससे आप नोट्स बनाते हो, ताकि इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन, स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जो भी जो एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, सारी चीजें जो सारी डिफरेंस है आपको समझ में आ गई। आई होप सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis, और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि और भी ऐसे वीडियो आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.